there's one thing common between me, you, and all of us. Whenever we put any effort, we want results. Since childhood, we have been told we have to do study because we want good marks. Further, we need to develop ourselves. We need to develop skills to get job. We have to earn the money to get spouse, get married, have house. So every action we put, we know we expect, knowingly, unknowingly, we expect some results. So fine, our human brain hardwire for same purpose: investment, results. But when it comes to do something good, something for others, where I need to invest either my energy, either my money, either my sources, life is too competitive. So as my brain has developed, so obviously my brain judge, like he guess what I'm getting, because he is not able to find that, okay, if I do something good for others, what I'll be getting. No answer. Okay, we have been told since childhood कि लोगों का भला करो तुम्हारा भला होगा. Okay, due to some religious we follow some religion की पुण्य मिलता है अच्छा काम करने से, लोगों का भला करने से, we follow. But sometime our mind, see, if we not able to convince ourselves for something, honestly we will not able to do it constantly, effectively, and to our potential. So obviously there are theories that, okay, we'll when we do something, somehow universe will get back to us and give us what we are given. But sometimes there's a doubt in mind, and my approach is to learn some practicality in the life more than theories. So with this approach, a few days back I went to see a doctor. I find that doctor having different rate for different class of people. I was a bit amazed that time, because what happens usually on the same board, doctor don't display all the charges for different class of people, and he's leading physician, so he can charge more, even charging less. He's charging, he's giving discount to the people who can't able to afford, and there's no documentation required. So some people may get advantage out of it. Fine. So I discussed with doctor, and I find something which I think it should be shared with all. So with this, I welcome Dr. Pratik Barai. He's with us, and I will ask if there is few questions for doctor, and which help us to learn more about how something doing for others will help us in a practical way. So welcome, Dr. Pratik. Sir, when I saw a display board, there are different charges for different class of people. First thing, from where you get this idea? Like, because for any action, we need some influence, some thought process. So what is your thought process? Just 1 minute. Actually, many people are now joining. Sorry for this disturbance. Sir, my first question to you: what was the thought process behind doing this? That may be some influence, you got influenced by somebody, or there's some thought process, you saw some experience which lead us to do this. Yes. Hello everyone, I'm Dr. Pratik Bare, working as a consultant physician in my clinic at Nagpur. Jumping on the point which was question asked by Mr. Yogesh sir, I have different rates for different socioeconomic status people displaying at my outside on board at my clinic, and I usually don't do any documentation to claim the benefits. Initially, I will stick to the point. Initially,
I started my clinic, and before starting it, I visited to multiple physicians and clinicians who are working with more experience than me, and I started. They said that you should keep your consultation fee fixed for everyone. But when I started, and personally, I experienced much people, very few peoples are there that they can't afford the fees, but they are also human being, and each and every human being, I think, deserves healthcare facilities, whether they are approachable to government hospital or private hospital. But definitely, each and every human being deserves good, healthy consultation. So initially, I started taking fees as per their socioeconomic status, or whatever they can be offered the fees. But after some time, I felt that some people, when they pay less fees, and when other patients are waiting outside, they see that the doctor is taking less fee from some other patients, and we are paying the fee. So some issue definitely created. But then I decided to display the fees, and after displaying, it is working good. Okay, fine. Sir, second thing, as I started with my presentation, that we have been told that if you do something good for others, okay, so it is on religious manner, जैसे हम बोलते हैं कि चलो ठीक है दूसरे के लिए अच्छा करो हमारा भी अच्छा होता है, right? But our human mind is hardwired in the manner that we always expect some results. Like if even we do some social cause or something for others, something is in mind that either Yes. we're looking for some status, either we're looking for some benefits which is not at present, but we and sometime we do for our friend or family because we know in future we need them also. So even we do something for other, there is something in mind always, right? Because our mind like this one. So what is your view if I talk about my mind is not able to accept that I'm doing something for somebody and I'm not able to get any result out of this, right? Okay. So apart from theories, I get your question. what could be the thing which as a human I'm getting? Every person do something for something. This is the rule of Yes, yes. any living organism. Yes, sir. And actually, Yes, yes. what happening? We are now living in a practical words, Yes, and yes, we yes. are we are one way we listen. कि do something for good, पुण्य मिलता है. Next time we listen कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है. So somewhere. Okay, so our mind also got jumping on the point, yes. जैसे कि अपन कोई भी चीज करते हैं तो बेनिफिट क्या है सबसे पहले, कोई भी Yes, डेफिनेटली yes. कोई भी चीज बेनिफिट के लिए करनी चाहिए. तो मैं जंप करूंगा हैप्पीनेस के लिए. व्हाट इज द अल्टीमेट मोटिव ऑफ लिविंग or earning or doing job or whatever you are doing? The ultimate motive is to get mental peace, satisfaction and happy life. So to live each and every moment, I think हर एक इंसान ने ये करके सोचना चाहिए कि उसको हैप्पीनेस किस चीज में मिलता है. कुछ लोगों को जैसे एडिक्शन है, सिंपल एग्जांपल ले लेते, कोई स्मोकिंग करके हैप्पीनेस ले रहा है, कोई पैसे है तो खर्च करके हैप्पीनेस ले रहा है, कोई जोमेटो से ऑर्डर करके हैप्पीनेस ले रहा है. तो हैप्पीनेस क्या है? अल्टीमेटली किसी को खुशी महसूस होती है तो ब्रेन्स में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो प्लीजर की फीलिंग आपको देते हैं. Right. तो इसको आपको आदत डालना है कि जो ब्रेन में हार्मोन निकलता है वो आपको किस चीज के वजह से चाहिए. तो सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं, सलमान खान की किक मूवी मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी. Yes. तो जैसे सलमान खान कुछ बच्चों के लिए मेडिकल हेल्प करता है तो उसको पर्सनली सेटिस्फेक्शन होता है, पर्सनली पीस फील होता है, मेंटल हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उसको बॉडी को और हेल्दी बनाने के लिए हेल्प करते हैं. तो satisfaction, mental satisfaction ultimately will result in your better health, better heart function, better lung function, better इमोशनल वेरिएशन. ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है एक बॉडी में जो हार्ट रेट कंट्रोल करता है, बहुत सारी चीजें, मसल मूवमेंट्स और ये सब चीजें कंट्रोल करता है. तो वो ऑटोनॉमस सिस्टम, ऑटोनॉमस मतलब खुद होके करता है, इसको इन्फ्लुएंस करता है अपना सेटिस्फेक्शन या पीस सेंटर जो भी माइंड में रहता है. तो मैं तो एडिक्शन
ही बोलूंगा, किसी को हेल्प करने का एडिक्शन ही लगाना चाहिए, बट उसको हेल्प करने के बाद जब उसके चेहरे पे स्माइल आती है, जैसे सिंपल एग्जांपल दूंगा, आई यूजली ट्राई टू डू 1 free consultation daily, mostly Okay. child population or pediatric population or any non-affordable person. So when he comes to me, visit in my clinic, and then when after consultation he asks for me what is the fees, and I say that I won't take fee from you, you are my 1 free patient today. So उसके बाद जो उसके चेहरे पे स्माइल आती है एंड वो प्रे करता है मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मैं कोविड में काम कर रहा हूँ, मुझे भी लगता है सर आप तो उसके जो प्रेज ब्लेसिंग्स है जो मुझे हैप्पीनेस देते हैं, उसके चेहरे की स्माइल है, हमेशा वो जब भी ऑन द वे से जाता है, मैं मैक्सिमम लोगों को ऐसे ही बोलता हूँ कि सर हम दोबारा आएंगे, तब मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ डेफिनेटली आइए, बट एज अ पेशेंट करके नहीं, कभी एज अ फ्रेंड करके। यस, तो जब वो वापस कभी आता है मिलने, जस्ट कोई गिफ्ट लेके आता है घर से, उसके मम्मी ने लड्डू बनाए हैं या कुछ है, सर आपके बेबी के लिए है, हम हर रोज प्रे करते हैं, तो उसके बाद जो फीलिंग आती है, हैप्पीनेस आता है, जब भी मैं क्लिनिक से वर्क प्लेस से वापस घर में आता हूँ तो आई एवरी टाइम आई फील हैप्पी। मुझे सबसे बढ़िया तो है जो नींद आती है इंसान को, हैप्पी स्लीप। हर इंसान रात में बेड पे सोने के लिए शांति की नींद जिसको बोलते हैं उसी के लिए काम करता है। हेल्पिंग अदर्स गिव यू हैप्पीनेस, some hormones releases in your mind will give you mental peace and also sound and healthy body also. No problem. हाँ, सो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं अच्छा, लाइक सम गुड कॉज, बट लगता है दुनिया ऐसी नहीं है, राइट? वी आर डूइंग बट पीपल आर नॉट एप्लीकेटिंग द सेम, राइट? और खासकर अगर मैं डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, हमने अभी देखा कोविड टाइम में काफी सारे स्ट्रगल थी लाइफ में, सब कुछ था, बट सोसाइटी हैव टू व्यूज. सम पीपल आर सेइंग नो, डॉक्टर इज डूइंग गुड वर्क, दे आर प्रेजिंग द डॉक्टर्स. सम पीपल आर देयर, दे आर सेइंग कि डॉक्टर इज नाउ मेकिंग मनी आउट ऑफ कोविड आल्सो, राइट? सो इट में हैपन कि आपके पास भी ऐसे नेगेटिविटी आप कभी भी देखते हो कि आ रही है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, उसके बाद भी तो जनरल हम लोग कैसे उस नेगेटिविटी से कोप अप करें, लाइक आपका क्या वे होता है? ओके, मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे नेगेटिव व्यूज ना आए। सभी प्रोफेशंस में अच्छे बुरे लोग रहेंगे ही। हाथों की पांचों उंगलियां अलग अलग साइज की होती है, तो सभी प्रोफेशंस में कोई बॉस अच्छा रहता है, कोई नहीं रहता है, कोई क्लाइंट अच्छा रहता है, नहीं रहता है, कोई पेशेंट अच्छा रहता है, नहीं रहता है, यह सब रिफ्लेक्ट्स होते हैं। हाँ, कोविड में तो स्पेशली बहुत तकलीफ हुई। आई हैव फेस अ लॉट, पीपल्स आर वेटिंग आउटसाइड, दे आर आस्किंग फॉर कंसल्टेशन, एंड इफ आई गिव सम मच मोर टाइम टू वन पेशेंट देन अदर स्टार्टेड दैट वी आर वेटिंग फॉर सच लॉन्ग टाइम। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कंसल्टेशन करते हैं तो हम ट्रीट करते हैं, बट वी कांट गारंटी दैट द ट्रीटमेंट इज वर्क और नॉट, और दैट्स डेफिनेटली सम केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें हम नहीं हेल्प कर पाते हैं पेशेंट्स की, या रिजल्ट जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं, हाँ पेशेंट भी नाराज होते हैं, बट हेल्थ रिलेटेड होने के कारण निगेटिव इन्फ्लुएंसेस बहुत सिवियरिटी इंटेंसिटी से आते हैं पेशेंट्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा मोबाइल कोई खराब हो जाता है तो ठीक है, एक दिन नहीं रहा, दूसरे दिन रहा, चलेगा, बट किसी की लाइफ रिलेटेड कुछ चीजें, कोई पेशेंट या कोई किसी की मम्मी थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड कम ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली अगर मेरी मम्मी रहेगी तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो वो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, वैसे समझ के मैं ट्रीट करता हूँ कि उससे जो निगेटिव वेव्स आ रहे हैं, उसके इमोशंस फ्लो और वो सब चीजों से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको निग्लेक्ट करना है। बहुत सारे पॉजिटिव वेव्स भी आते हैं तो उनको एक्सेप्ट यस, करना है। ये सभी प्रोफेशन में रहेगा, डेफिनेटली अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किसको एक्सेप्ट करे, किसको ना। डिफिकल्ट है, जितना इजी बोलने के लिए उतना इजी नहीं है, बट हाँ, जैसे मैंने बोला कि एडिक्शन लगाई है तो इस चीज का भी आप खुद पे वर्क कीजिए, एडिक्शन लगाई है इसका भी वर्क कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। दूसरी चीज मैं एक कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा पहले पॉइंट, यू हैव सेड दैट everyone is doing something for others, other making happy, and what they are gaining, this is the यस, question. So मैं ये कहूंगा कि expecting from others is not good. So expect from yourself. आप कल कैसे थे और आप आज कैसे हैं, आप
आपका बिहेव कैसा है किसी की तरफ, उसका बिहेव आपके तरफ कैसा रहेगा वो मैटर नहीं करता। उसकी एनर्जी उसके पास ही रहने दीजिए, आप खुद की एनर्जी डेवलप कीजिए। हाँ, किसी से आप एक्सपेक्ट करते हो तो फिर अगर वो उस पे उतरता है, खरा उतरता है तो आपको खुशी होगी, बट अगर वो एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा तो आपको दुख होगा। तो बेटर मैं करूंगा कि खुद से एक्सपेक्ट कीजिए, खुद के बिहेवियर से, और खुद को टैली कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए। हैप्पीनेस का कारण खुद ही बनिए, खुद के हैप्पीनेस के लिए। अदर के हाथ में आपके हैप्पीनेस और आपकी पीस की डोरी मत दीजिए। यस, Right. So I come to beginning from where I began and what I able to understand. That by हम लोग जो सोचते हैं कि हम लोग किसी के कर रहे हैं तो वो क्या मिलता है, हमें मिलता है। सर सेड हमारा खुद का जो हैप्पीनेस लेवल होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, अच्छी स्लीप आती है, हमारा हार्ट अच्छा रहता है। एंड दैट आई थिंक इट इज बिगेस्ट रिटर्न वी कैन गेट फ्रॉम एनीथिंग, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर दिस ओनली। हम एक काम करते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, हमको अच्छी नींद आए, हम वही हेल्दी इंश्योरेंस रहे, हमारा पॉलिसी हार्ट है अच्छा रहे। तुम्हारी, उसमें इन्वेस्ट कीजिए यस, और इंश्योरेंस देखिए। जैसे पैसे देके आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, वैसे ही इसको भी डेली वर्क कीजिए और खुद के इंश्योरेंस, हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ यस, खरीदिए। इट इज आई थिंक दिस पॉइंट कि लोग वो जल्दी रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग इतना सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, हम हेल्थ पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं। सो इन्वेस्ट करो इस पे, किसी दूसरे के लिए कुछ करके देखो, एंड देन यू फील सेटिस्फेक्शन, यू फील हैप्पी, यू फील हेल्दी। दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर यू आर डूइंग, राइट? यस यस। ओके। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि डेफिनेटली लाइफ अर्निंग के लिए, जॉब के लिए, पैसे के लिए हर बार हम दूसरों की हेल्प नहीं कर पाते। तो मैं ये राइट। पॉइंट पे एक बोलना चाहूंगा कि हाँ, आप स्क्रीन आउट कीजिए कि आपको किसको हेल्प करनी है, किसको नहीं करनी है। नहीं करनी मतलब डेफिनेटली कौन पे करके आपको हेल्प कर सकता है। मैं फ्री कंसल्टेशन तो कर नहीं सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है मैं यस, सबके लिए फ्री करूंगा, बट हाँ, आप किसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ऐसे भी आपको, अगर आप यही अच्छी चीज, अच्छा वर्क आप कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली, अगर मेरी ट्रीटमेंट अच्छी है तो मेरे पास पेशेंट्स बढ़ते जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो आप उनको थोड़ा सा सिंपैथी और प्यार से अच्छी ट्रीटमेंट देंगे तो हाँ, उनके पास पैसा है, या इफ दे आर अफोर्डेबल दे विल पे यू। ओके। तो वो दे विल हैप्पीली पे यू दैट। दूसरा फैक्टर जो रहेगा हेल्पिंग का, हैप्पीली पे जॉब। जो सभी लोग अपने अपने जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, आपको वो जॉब के साथ लाइफ टाइम रहना है, तो वही अपने जॉब रिलेटेड आप किसी को हेल्प कर पाओगे तो मैं सबसे बेस्ट रहेगा, इजी वे रहेगा, क्योंकि आप उसमें मास्टर रहते हो, आप उसमें काम करते हो। तो आपके ओके। जॉब रिलेटेड आप किसी को हेल्प कर सकते हो, तो वो मुझे लगता है कि सबसे इजी वे है ढूंढने का कि आप किसी को हेल्प करना चाहते हो क्या। और जॉब है तो आपको पेमेंट भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, और बहुत सारे लोग हैप्पीली पे करने के लिए आपको विलिंग भी रहेंगे। यस। ओके।